Very good morning to all of you. So in the last class of class 11th economics, we in the chapter price discrimination, we have studied the in the specific analysis chain effect of demand shift and the equilibrium price and quantity. Okay, so there are various factors affecting demand of a commodity. Okay, we have already discussed all the different factors which affected the demand of a commodity in the chapter law of demand. Okay, so due to change in its factors, so the equilibrium price and the equilibrium quantity is also affected. So we were discussing we have discussed the one factors affecting demand of the commodity. So we have discussed, that is effect of change in the taste and preference of a consumer on the equilibrium price and the equilibrium quantity. Okay, so when there is favorable change, okay, when we talk about the for the demand of a commodity, so when there is favorable change in the taste and preference of the consumer, so the demand curve will be shift to the rightward. Okay, so demand curve क्या होगा, वो rightward shift होगा, as it means कि जब rightward shift होने का मतलब ये है कि there is excess demand in the economy में क्या हो जाएगा, excess demand हो जाएगा, and there is also increase the competition amongst the buyer में क्या हो जाएगा, competition हो जाएगा, because supply कम हो जाएगी और डिमांड क्या है, कमोडिटी की ज़्यादा हो जाएगी, जो पुश क्या करेगा कि प्राइस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस जो यहाँ पे थी, अब वो हम जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर, सो वी विल गो टू दिस पॉइंट, बट यहाँ पे जाते ही एक्सेस डिमांड ज़्यादा हो गया है, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गया है। इस कंडीशन पे क्या होगा कि प्राइस क्या हो जाएगी, उस कमोडिटी की पुश हो जाएगी, इट विल इंक्रीजेस। सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, सो सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज according to the law of supply it says that there is positive relation between the price and the quantity supplied. Okay, when the price of the commodity increases, so the supply of the commodity quantity supplied will also be increases and the vice versa. Okay, so क्या होगा कि increase in price होगी, price increase होगी, तो supply भी क्या हो जाएगी, वो increase हो जाएगी। so equilibrium point क्या है, वो E से जो n शिफ्ट हो गया, तो वो अगेन n से E1 हो जाएगा। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कर लेंगे, जिसमें क्या है कि प्राइस जो हमारी OP थी, अब वो प्राइस इंक्रीज़ होके OP1 हो गई है, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1, एंड क्वांटिटी जो हम लोग पहले कितनी डिमांड कर रहे थे, OM क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, तो क्वांटिटी भी अब क्या हो गई है, OM टू OM1 वो शिफ्ट हो गई। ओके, सो इट इज़ द कंडीशन व्हेन देयर इज़ फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द consumer. Okay, so what will impact on the equilibrium price and the equilibrium quantity? So when there is change, when there is favorable change, so demand will shift to the rightward, and there is also shift in the equilibrium price and the equilibrium quantity. So equilibrium price will increases as well as equilibrium quantity will also be increases. Okay, so next condition is when we talk about there is unfavorable change. ओके, अनफेवरेबल चेंज होगा मतलब कि अभी क्या है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है वो डिमांड के फेवर में नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सो जब डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड, डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा, वो राइटवर्ड से वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि अब क्या है, इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई, क्योंकि डिमांड इसलिए कम हो गई क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो डिमांड के फेवर में नहीं है। तो इस कंडीशन में देयर इज़ कॉजेज़ ऑफ एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। अब एक्सेस सप्लाई होने का मतलब यह है कि there are too many suppliers in the market. Okay, मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा
सप्लायर्स हो गए हैं और वो अपनी क्वांटिटी को बहुत सोल्ड आउट करना चाह रहे हैं, बट डिमांड क्या है वो कम हो चुकी है, तो नो बडी इज़ रेडी टू परचेज़ दी कमोडिटी। अब इससे क्या होगा कि डिफरेंट जो सेलर्स हैं उनको लॉस होने लगेगा कि हम मार्केट में हैं, हम गुड्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बट नो बडी इज़ रेडी टू परचेज़ दी कमोडिटी, कि कोई परचेज़ करना नहीं चाह रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन पे सेलर क्या करेंगे, या तो प्रोडक्शन को वो स्टॉप कर देंगे, ठीक, या तो जितने भी फर्म्स इंडस्ट्रीज़ में हैं वो क्या कर देंगे, कुछ फर्म्स इंडस्ट्री को एग्ज़िट कर देंगे। जैसे ही वो एग्ज़िट कर देंगे तो सप्लायर कम हो जाएंगे। तो अब सप्लायर कम होने का मतलब है कि सप्लाई भी कम होगी। फिर ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जो पहले ई से, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर से E2 पे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे प्राइस भी क्या है OP से OP2 हो जाएगी और क्वांटिटी भी क्या है OM से OM2 हो जाएगी। मतलब अनफेवरेबल चेंज होगा तो कमोडिटी की क्या है प्राइस भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो जब फेवरेबल चेंज था तो क्या हो रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था डिमांड कर्व, और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ इंक्रीज़ कर रही थी। बट जब व्हेन देयर इज़ अनफेवरेबल चेंज, सो द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इट ऑल्सो रेड्यूस, वो दोनों भी क्या हो जाएंगी, रेड्यूस हो जाएंगी। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड both one, the favorable change and the unfavorable change. So today we are going to start a next factor affecting demand, that is when there is change in the income of the consumer. Okay, अभी क्या हो रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, बेसिकली फॉर द नॉर्मल गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स जो होता है, जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल गुड्स जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ के पेन पेंसिल, उनके फूड आइटम्स, ये सारे क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं कि कोई भी कंज्यूमर अपनी डेली लाइफ में ये सारे गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, जो भी डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, वीट को यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर को, जितने भी सारे वो होते हैं ना, वाइट फ्लोर, ये सारे जो होते हैं, ये सारे क्या है, नॉर्मल गुड्स है कि हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो क्या उस इम्पैक्ट पड़ेगा नॉर्मल गुड्स पे। ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है और वेदर इनकम डिक्रीजेज, सो व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन द नॉर्मल गुड्स, कि हम नॉर्मल गुड्स को इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ करेंगे, कि नॉर्मल गुड्स को इंक्रीज़ इन इनकम के साथ हम लोग उनको डिक्रीज़ करेंगे। तो हमें पता है बहुत अच्छे से, हम लोगों ने पढ़ भी लिया है कि नॉर्मल गुड्स, अगर हमारी इनकम क्या है, कंज्यूमर की इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी इनकम 40,000 है और अब मेरी इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वो 40 से 60,000 हो गई है। तो मेरा कंजप्शन क्या है, अब पहले मैं क्या थी, एक नॉर्मल, पहले मैं बहुत कुछ कम आइटम्स को ही क्या करी थी, परचेज़ करी थी, बिकॉज इतनी सैलरी मेरी नहीं थी। अब मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर गई है तो मेरी डिमांड भी दूसरे गुड्स के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये कर्व किधर हो जाएगा, इनकम इंक्रीज़ होने के साथ ही साथ जो नॉर्मल गुड्स की कंजप्शन है, जो नॉर्मल गुड्स को परचेज़ करेगा कोई भी कंज्यूमर, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है, फेवरेबल चेंज हो रहा है, मतलब इनकम के साथ ही साथ जो कंजप्शन है नॉर्मल गुड का वो भी इंक्रीज़ होगा। सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वर्ड। और अगर इनकम डिक्रीज़ होगी, अब मेरी 40,000 से 20,000 सैलरी हो गई, तो अब मैं क्या नॉर्मल गुड को कंजप्शन उतना ही कर पाऊँगी, अब मैं उनका कंजप्शन कम कर दूँगी, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई है, डिक्रीज़ कर गई है। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ ओके। सो increase in income, rise in income causes demand of a normal good by the consumers to go up. Accordingly, demand increases and the demand curve shift to the right. A consumer buys more of a normal goods with rise in income. ठीक है, rise in income cause demand of a normal good by the consumer to go up. जैसे ही किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो जो भी डिमांड है नॉर्मल गुड की, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो गो अप, मतलब वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सो अकॉर्डिंगली डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी राइट। जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वर्ड। डिमांड कर्व क्या होगा, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो अ कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ अ नॉर्मल गुड विथ राइज इन इनकम। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा,
मोर ऑफ नॉर्मल गुड को ज़्यादा कंज्यूम करेगा विद द राइज इन इनकम। इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ ही साथ जो कंज्यूमर है वो नॉर्मल गुड का कंजप्शन भी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। सो इन फिगर 11.11 इन दिस फिगर डिमांड कर्व डी डी, दिस इज डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस एस, सप्लाई कर्व एस एस, ओके। डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस एस, ओके, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। दिस पॉइंट पे ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, यस, दिस इज ई पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई, ओके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओ पी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, ओ पी हो गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जिस प्राइस को डिटरमाइन करेंगे दैट प्राइस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड जो क्वांटिटी वो लोग परचेज़ करेंगे, सेलर उस कमोडिटी को सेल करेगा और बायर उसी कमोडिटी को परचेज़ करेगा इन दैट प्राइस। जो भी क्वांटिटी को करेगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके। So due to rise in income of the consumer, demand of the normal good increases and the demand curve shift to the right from DD to D1 D1, ठीक है। जैसे ही इनकम हमारी राइज़ करेगी, कंज्यूमर की इनकम राइज़ करेगी, तो डिमांड जो नॉर्मल गुड की है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी DD टू D1 D1। अब यही डिमांड कर्व क्या है, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एज D1 D1। ये क्या था, डी डी, ओके। सो दिस कॉजेज एक्सेस डिमांड। अगेन क्या कंडीशन हो गई कि अब डिमांड हमारी, देखो क्या होता है कंडीशन, क्या कंडीशन चेंज होती है, जैसे कि कोई भी जितने भी पूरे ऑल ओवर द इंडिया जितने भी कंज्यूमर हैं, वी ऑल आर कंज्यूमर, हमारी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई है। हर एक इंडिविजुअल की अगर इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो अब हम लोग की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले हम उतने सारे आइटम्स को परचेज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास इतना इनकम नहीं होती थी। अब हमारी इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, तो हम जो भी कंजप्शन है गुड्स का वो भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। उनके इंक्रीज़ होने के साथ ही साथ पूरी कंट्री में, अगर हम इंडिया की बात करें, लोगों की इनकम इंक्रीज़ हुई है तो सबकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होगी। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द एक्सेस डिमांड। यही वो कंडीशन है कि जहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्सेस डिमांड हो गया। एक्सेस डिमांड कितना हो गया, ये दिस ई एन इसको बोलते हैं। इतना जो इंक्रीज़ हुआ है ना, जो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, इतना इंक्रीज़ होना ही क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। सो ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड देयर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग द बायर। सेम रीज़न जो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था फेवरेबल चेंज में, कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब जितने भी कंज्यूमर हैं कंट्री में, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो हमारे बीच क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। अब सब सारे कंज्यूमर यही चाह रहे हैं कि वो पहले जाए, वो पहले उस प्रोडक्ट को पाए। तो ये कंपटीशन अराइज हो गया है कि ये है कि पहले जाओगे तो आपको पहले सामान मिल जाएगा। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो सप्लायर क्या सोच रहा है कि सप्लायर तो अभी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, वो क्या सोच रहा है कि वो सप्लाई को प्राइस को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे। जैसे ही प्राइस कोई भी कमोडिटी की इंक्रीज़ होगी तो भले मेरी इनकम कुछ भी बढ़ी हो, 20,000 भी बढ़ी होगी, बट मैं ये सोचूंगी ना, अरे अब तो ये कमोडिटी बहुत ही महंगी हो गई, पहले वो 50 रुपीज़ का मिल रहा था, अब 100 रुपीज़ का मिल रहा है, तो अब मैं क्या है उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा उन कमोडिटी को कंजप्शन करना कम हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, या तो हम वहीं पर रोक देंगे। बट जैसे ही प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज़ हुई तो जितने अदर सप्लायर हैं वो क्या हुए, इनकरेज हुए, वो मोटिवेट हुए कि अब अच्छा प्राइस इतनी हो गई है, मतलब हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लायर क्वांटिटी की सप्लाई करना भी इंक्रीज़ कर देगा। फिर इसी कंडीशन पे क्या होगा, इंक्रीज़ इन डिमांड हो गया, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, जो प्राइस को अपवर्ड कर देगा। प्राइस को अपवर्ड होते ही नंबर ऑफ़ सप्लायर क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, वो और कमोडिटी को सप्लाई करना इंक्रीज़ कर देंगे। इससे क्या होगा, अब ये जो पॉइंट हमारा एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी वो फिर इस पॉइंट पे चला जाएगा, जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी।
जो हम लोग डिमांड हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, अब ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग ने जनरेट कर लिया, दैट इज़ E1। ये जो पॉइंट है, आई विल शो यू इन अनदर कलर, यस, ओके, दिस, पहले यहाँ से ये हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, सी हियर। अभी क्या हुआ कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो मेरा एक्सेस डिमांड की कंडीशन ये हो गई। फिर क्या हुआ कि प्राइस राइज़ हो गई, प्राइस राइज़ होने से नंबर ऑफ़ सप्लायर इंक्रीज़ हुए, नंबर ऑफ़ सप्लायर इंक्रीज़ हुए तो मतलब वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करना ज़्यादा कर दी। अब सप्लाई भी क्या हो गई, इस पॉइंट पे रीच कर गई। अब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड दी E1, इसी को क्या बोलेंगे, E1 बोलेंगे। अब ये क्या है, ये न्यू इक्विलिब्रियम है। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नाउ OP1 इज़ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OM1 इज़ न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो सिंपल ना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ये यही कह रहा है कि ये यही कह रहा है कि जो डिफरेंट ये सिचुएशन है कि हम क्या कह रहे हैं कि अब जो न्यू इक्विलिब्रियम बना वो क्या हो गया, E1 पे शिफ्ट हो गया। प्राइस हमारी जो पहले OP थी वो OP1 हो गई, जो क्वांटिटी OM था अब वो OM1 ले लीजिए, ठीक है, OM1 हो गया। अब इससे क्या हो गया, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल अगेन एट E1। अब यहाँ पे मार्केट डिमांड तो पहले इतना इंक्रीज़ हो गया था, बट सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हुई। अब सप्लाई कैसे इंक्रीज़ हुई, प्राइस के इंक्रीज़ होने से सप्लाई इंक्रीज़ हुई, सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। जैसे ही न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। दैट मीन्स कि OP से OP1 हो गया प्राइस, E से E1 हो गया इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम है पॉइंट, और OM से OM1 क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, यही क्या हो गया, इंक्रीज़ इन इनकम के पूरा ये ड्रास्टिक चेंज हो गया कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग रीच कर गए। सिंपल ना, बहुत सिंपल है, ऐसे ही सारे हैं आपको जो एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये क्या रीज़न था आपका, इंक्रीज़ इन इनकम। अब नेक्स्ट कंडीशन आप क्या पढ़ोगे कि डिक्रीज़ इन इनकम, कि जब इनकम क्या हो गई है वो डिक्रीज़ कर गई है, तो व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन दी व्हेन देयर इज़ डिक्रीज़ इन इनकम। सो फॉल इन इनकम causes demand of a normal good by the consumer to go down। अब देखिए, अब मेरी जो इनकम पहले 40,000 थी, अब वो 40,000 से क्या हो गई, मेरी इनकम 20,000 हो गई। अब कुछ प्रॉब्लम आई, मेरे जो भी ओनर थे, या सॉरी ओनर नहीं, जो मेरे हेड थे, वो उन्होंने क्या बोला कि मतलब इस सैलरी, अब क्या है, मैं आप लोग को सैलरी आप लोग की रिड्यूस कर रही हूँ, जो भी है 40,000 से आप लोग की 50% सैलरी रिड्यूस हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 हो गई हमारी 40 से। अब क्या है कि जो हम पहले डिमांड कर रहे थे, जिन कॉमोडिटी की डिमांड कर रहे थे, नॉर्मल गुड्स जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो भी सोप हो गया, अपने फूड आइटम्स हो गए, ऑयल हो गए, जो भी बेसिक आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रेड बटर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, अब हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब घर में क्या होगा कि अरे अब तो सैलरी कम हो गई है, अब हम लोग उतना क्या कर सकते हैं, कंजप्शन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जैसे ही इनकम डिक्रीज़ हुई तो जो भी डिमांड है नॉर्मल गुड का, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि अब कोई भी इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड दी प्राइस ऑफ द दैट प्रोडक्ट, की उतना प्राइस वो अफोर्ड कर सके। सो अकॉर्डिंगली डिमांड डिक्रीजेस, हमारी डिमांड नॉर्मल गुड की डिक्रीज़ हो गई। सो जब डिमांड डिक्रीज़ हुई तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड। सो सिंपल, पहले ये कर्व हमारा यहाँ पे था, अब ये क्या हो रहा है कि कम हुआ तो it will shift to here। okay, so consumer buy less of a normal good with fall in income। ठीक है, जैसे ही कंज्यूमर क्या करेगा, गुड लेस गुड को बाय करेगा, नॉर्मल गुड को विद अ फॉल इन इनकम, जैसे इनकम फॉल कर गई। सो इन फिगर 11.12 डिमांड कर्व DD
डिमांड कर्व DD and supply curve SS, supply curve SS intersect at point T, intersect point E. Okay, so accordingly equilibrium point is E, equilibrium point E हो गया. equilibrium price is OP, जहाँ पे intersect करेगा वही न्यू equilibrium price होगी OP. equilibrium quantity is OM. ओके, जहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, डिमांड कर्व DD और सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे. और जो प्राइस होगी उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, जो डिटरमाइन होगी जहाँ पे दोनों डिमांड और मार्केट फोर्सेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिटरमाइन होती है और वहीं पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी. तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी OP and equilibrium quantity will be OM. Okay, so next condition will, yes, so due to fall in income, जैसे ही इनकम फॉल हुई, so the income of the consumer fall, demand of the normal good decrease, डिमांड क्या हो जाएगी, जो भी नॉर्मल गुड की है वो डिक्रीज कर जाएगी. एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी लेफ्ट फ्रॉम DD टू D2. अब पहले क्या था, जो न्यू ये हमारा था, अब क्या हो रहा है कि इनकम फॉल हो गई, तो इनकम जैसे ही फॉल हुई तो क्या हो गया कि कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम बन रहा था, अब कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया एज D2. ठीक, सो दिस कॉज एक्सेस सप्लाई. अब देखिए डिमांड हमारी कम हो गई ना, इनकम जैसे ही कम हुआ तो डिमांड नॉर्मल गुड की क्या हो गई, वो कम हो गई. जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी, मतलब अभी भी सप्लायर तो उतनी ही कमोडिटी को सप्लाई कर रहा था ना, तो इस कंडीशन पे क्या हो गया कि सप्लाई क्या हो गई, वो हमारी एक्सेस सप्लाई हो गई और डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई, क्योंकि इनकम क्या है, कंज्यूमर की कम हो गई. अब जैसे ही इनकम कंज्यूमर की कम होगी तो वो क्या करेगा, उतनी कमोडिटी तो परचेस कर नहीं सकता है, तो वो अपनी डिमांड डिक्रीज़ कर देगा. बट सप्लाई तो अभी भी उतनी ही हो रही थी. एकदम रैंडमली तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकता ना, कि जैसे इनकम डिक्रीज़ हुई तो लोग डिमांड कम किए तो तुरंत सप्लायर भी क्या कर देगा, कमोडिटी को सप्लाई करना कम कर देगा. ऐसा तो होगा नहीं, इट विल ऑल्सो टेक टू मच टाइम. तो ये कंडीशन क्या हो जाती है कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द एक्सेस सप्लाई. ये एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. अब एक्सेस सप्लाई होने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक्सेस मतलब आ रहा है कि मतलब कि उसमें कंपटीशन अराइज हो जाएगा. मतलब अब सेलर क्या हैं, बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बट लोग डिमांड कर नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा अमंग दीप सेलर्स. अब डिफरेंट सेलर क्या करेंगे, डिफरेंट फीचर्स शो करेंगे, उनकी प्राइस में शो करेंगे, प्राइस को चेंज कम करेंगे, एज वेल एज ये कहेंगे 50% ऑफ ऑन दीज प्रोडक्ट, जैसे क्या होगा कि अट्रैक्ट करे. बट तो भी डिमांड तो लोगों की है नहीं, लोग डिमांड करेंगे नहीं. अब इस कंडीशन पे क्या होगा कि सप्लायर या तो कमोडिटी का प्रोडक्शन कम कर देगा कि वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, या तो वो क्या करेगा कि डिफरेंट जो भी फर्म्स हैं वो मार्केट से एग्ज़िट कर देंगे, वो लीव कर देंगे. ठीक है, अब इससे क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई. सप्लाई कम हुई ना, सप्लाई जैसे ही कम होगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा E पे था वो E2 पे शिफ्ट हो गया. मतलब हमको अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमको न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया. अब क्या होगा कि अब इसको फाइंड आउट होने से हमारा जो भी एक्सेस सप्लाई की कंडीशन थी, डिमांड हमारी कम हो गई थी, वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगा. एंड देन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल अगेन एट पॉइंट E2. अब इस E2 पॉइंट पे जो नया कर्व जो राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, इस E2 पॉइंट पे अगेन एक दूसरे को डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे एंड विच करस्पॉन्ड टू लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस. अब प्राइस भी क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, तो प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो गई है. सो अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, OP2 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM2 हो गई. मतलब वो क्या हो गई, वो रेड्यूस हो गई. ठीक है, क्योंकि डिमांड कम हुई. तो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो आपका पॉइंट हो गया, वो
E2, ओके, तो E2 is equilibrium point, equilibrium, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज OP to OP2 इक्विलिब्रियम प्राइस. न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ना, पहले OP था, अब वो रेड्यूस होके प्राइस हमारी रेड्यूस कर गई है. सो इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP2 हो गया. एंड देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM से OM2 हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके, ये क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इनकम. इनकम जैसे ही डिक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया, क्योंकि डिक्रीज इन इनकम से डिमांड क्या है, कमोडिटी की कम हो गई. जैसे ही कमोडिटी की डिमांड कम हुई तो क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई है. सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब एक्सेस सप्लाई. और देयर इज़ ऑल्सो कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया है, जो क्या कर रहा है कि विच पुल्स द प्राइस डाउनवर्ड. अब इससे क्या होगा कि प्राइस क्या हो गई है, वो पुल होके डाउनवर्ड हो गई है, कम हो गई है. एंड देन ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, जैसी ही प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. सप्लायर कम करेंगे और जो डिमांड एक्सटेंड हो गई थी फ्रॉम पॉइंट T से फिर से न्यू पॉइंट पे E2 पे पहुंच जाएगी. और फिर एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट होगा, जहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व मींस डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा सप्लाई कर्व को. वो एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. एंड देन प्राइस विल डिक्रीजेज फ्रॉम OP to OP2. प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज क्वांटिटी विल ऑल्सो भी डिक्रीजेज फ्रॉम OM to OM2. ओके, तो E से E2 इज़ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP से OP2 इज़ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड OM to OM2 इज़ इक्विलिब्रियम quantity. Okay, this will change all the concept. So simply it is about what is the impact on the when we see that when there is effect of change in the price of the when we see that the change in the income of the consumer. Okay, so when there is a change in the income of the consumer, change in the income of the consumer on the what will impact on the equilibrium price and the equilibrium quantity when the consumer is purchasing the normal good. Okay, so when the consumer is purchasing the normal good, what will impact? So first condition is when there is increase in income. जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है, सो जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, डैट मीन्स कि डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड will also increases. So demand increases for the product. When the demand increases for the product, so the demand curve will shift to the rightward demand curve shift हो जाएगा. So due to rise in income of the consumer, income consumer की increase होने से वो demand क्या नॉर्मल गुड की increase कर देगा, तो कर्व हमारा rightward shift हो जाएगा from DD to D1. So this is the situation of the excess demand. ये डिमांड, ये किसकी कंडीशन है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, बिकॉज डिमांड क्या हो गई है, वो सप्लाई से ज़्यादा हो गई है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज होने की वजह से competition among the buyer will also increases, because the demand is too much increases and the supply is not too much, not that level increases. वो उतने लेवल पे सप्लाई इंक्रीज़ हुई नहीं है, तो कंपटीशन अमंग दी बायर्स, और जैसे ही कंपटीशन अमंग दी बायर्स हो जाएगा तो ये पुश क्या करेगा कि प्राइस अपवर्ड हो जाएगी. प्राइस इंक्रीज़ होने का मतलब है कि सप्लाई विल इंक्रीज़, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी. तो जैसे ही सप्लाई इंक्रीज़ होगी, ड्यू टू इंक्रीज़ इन सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्राइस, सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीजेज. So new equilibrium point will be reached where the demand curve intersect the supply curve. So new equilibrium point is reached, as well as there is also price increases from price OP to OP1. So new equilibrium price is also identified, new equilibrium point is identified, and the
new equilibrium quantity is identified. So the price is increased from OP to OP1 and the equilibrium quantity is also increased from OM to OM1. Okay, so this will be changed when there is increase in the income of the consumer. And the next condition on the contrary of this, when there is decrease in income, so when there is decrease in income, so demand for the normal good will also be decreases. Demand decreases, it means demand curve will shift to the leftward. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.